Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing about the exercise 1.2 of class 7th. Let's see the question number first. Write down a pair of integers whose sum is minus 7. Let's see. A part is given. Write down a pair of integers. A pair of integers लिखना है जिसका सम क्या होना चाहिए -7 होना चाहिए. Let's see. The pair of integer whose sum is -7. Let's see. 5 add with -12. ठीक है. अगर किन्हीं दो इंटीजर्स का सम अगर -7 है, इट मीन्स जो ग्रेटर इंटीजर होगा उसका सिंबल क्या होगा, माइनस में होगा. ठीक है. Then 5 minus 12, that is -7. Then the sum of 5 and -12 is -7. Let's see the next part, B part. The difference of the two integer is -10. तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है. किन्हीं दो इंटीजर का क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए. ठीक है. इट मीन्स अगर रिजल्ट का सिंबल माइनस में है, देन जो गिवन इंटीजर्स हैं उसमें जो ग्रेटर इंटीजर होगा उसका सिंबल भी क्या होगा, माइनस ही होगा. लेट्स सी. If the difference between 2 and 12 is -10. ठीक है. कि 2 और 12 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा देन आएगा 10. और 12 क्या है, 2 से एब्सोल्यूट वैल्यू जो 12 की है वो ग्रेटर है. इट मींस जो रिजल्ट है उसका सिंबल क्या आएगा, माइनस ही आएगा. इट मींस द डिफरेंस ऑफ 2 and 12 is -10. Let's see the C part, whose sum is 0. Two integers whose sum is 0. The sum of the two equal and opposite integer is always the 0. It means two equal होने चाहिए और opposite होने चाहिए. Means एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए. Then दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा. Let's see two integer. One is -3 and another is +3. -3 and +3, then sum is 0. ठीक है, हो जाएगा. Let's see question number second. Write a pair of negative integers whose difference is -8. ठीक है. दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, +8 होना चाहिए. ठीक है. दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, +8 होना चाहिए. लेट्स सी. -5 एंड -13. ठीक है. अगर यहाँ पे प्लस का 13 लेता देन वो माइनस इंटू प्लस -13 हो जाता. लेकिन माइनस इंटू माइनस माइनस का ही लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस डेट इज प्लस and -5 as it is. Then 13 minus 5, that is 8. It means -5 and -3 वो नेगेटिव पेयर हैं जिनका डिफरेंस क्या है, +8 है. Let's see the B part.
Write a negative integer and a positive integer whose sum is minus 5. It means a negative integer and a positive integer जिनका सम क्या है -5 है। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। देन जो रिजल्ट है वो किस में है -5 में है। इट मीन्स रिजल्ट का जो सिंबल है वो क्या है माइनस है। इट मीन्स जो गिवन इंटीजर हैं या फिर जो इंटीजर हम फाइंड आउट करेंगे उनमें से जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो माइनस वाले क्या होगी बड़ी होगी, तभी तो रिजल्ट क्या है -5 में है। देन द सम ऑफ -10 and +5, -10 and +5 two integers हैं, one is negative and another is positive and whose sum is -5. Let's see the C part. Write a negative integer and a positive integer. One is negative and one is positive. Whose difference is, जिसका difference क्या होना चाहिए -3 होना चाहिए. Write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. Then -2 and +1. -2 as it is, then minus into plus, that is -1 equal to -3. Then -2 and -1, that is -3. It means the difference of -2 and +1 is -3 is the right answer. Then the pair is -2 and +1. Let's see question number 3. In a quiz, team A scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? Let's see. Team A score in first round is -40 and second round is 10 and the third round is 0. Then the total score of team A is -40, add with 10, add with 0. Then we add -40 and +10, that is -30. It means total score of team A is -30. Then we find the score of team B. Then team B score in first round, that is 10, and second round, that is 0, and third in -40. Then we find the total score of team B is 10 plus 0, then plus -40. Then we add 10 plus 0, that is 10, and plus into minus, that is -40. Then we solve plus 10 and -40, that is -30. It means टीम ए है वो भी स्कोर कर रही है -30 एंड टीम बी है वो भी स्कोर कर रही है -30. इट मीन्स जो दोनों टीम है वो क्या कर रही हैं इक्वली स्कोर कर रही हैं. ठीक है, हो जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द blanks. Fill in the blanks to make the following statement true. Let's see. -5 add with -8 is equal to -8 में क्या ऐड किया जाए कि जो लेफ्ट हैंड साइड हो किसके इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के इक्वल. देन वी अज्यूम
If we add x to the minus 8, then left hand side equal to right hand side. Then we find the value of x. Let's see. Part first, that is minus 8 add with minus 5, then gives minus 8, then plus x. ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है हमको. लेट्स सी. पहले सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज माइनस 8 minus 5 as it is plus into minus, that is minus 8 is equal to minus 8 then plus x. ठीक है, then x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, then minus 8 इस साइड आकर that is plus 8, then minus 5 as it is, minus 8 as it is, and minus 8 ब्रैकेट से स्टार्ट आकर plus 8 is equal to x. Then plus 8 and minus 8 both have equals and opposite sign. Then we cancel out. Then जो x की वैल्यू आ गई as x is equal to minus 5. x is equal to minus 5. Then x की वैल्यू क्या आएगी minus 5. It means अगर मैं minus 8 में अगर मैं minus 5 ऐड कर देता हूँ, then जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड. और वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू. लेट्स सी अगेन. दे रखा है कि माइनस 5 और माइनस 8 को ऐड किया, देन टू द राइट हैंड साइड माइनस 8 में क्या ऐड किया जाए कि जो लेफ्ट हैंड साइड हो कि किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड. देन एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए नंबर बी x. इट मींस अगर मैं माइनस 8 में अगर मैं x ऐड करता हूं, देन लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड. देन फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू. देन x को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी इंटीजर्स को ब्रैकेट के एक साइड ले जाएंगे. देन माइनस 8 को ब्रैकेट के साइड लेके जाएंगे, हो जाएगा प्लस, देन प्लस इंटू माइनस कैंसल आउट एंड x इज इक्वल टू माइनस 5. Let's see the second part. Let's see the second part is minus 53 add with a number that gives minus 53. It means minus 53 में एक ऐसा इंटीजर को ऐड करना है कि जो रिजल्ट क्या है, माइनस 53 है. ठीक है, लेट एज्यूम ए नंबर दैट इज x. इट मींस अगर मैं माइनस 53 में x ऐड करता हूं, देन जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस 53. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. लेट्स सी. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन माइनस 53 को ब्रैकेट के उस साइड ले जाएंगे, माइनस 53 एज इट इज, देन माइनस 53 ब्रैकेट के इस साइड आकर प्लस 53, सिंबल चेंज हो जाएंगे. देन x इज इक्वल टू माइनस 53 एंड प्लस 53 डेट इज कैंसिल आउट, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. इट मींस अगर मैं माइनस 53 में 0 ऐड करता हूं, देन जो लेफ्ट हैंड साइड हो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड. देन राइट आंसर इज 0. Let's see the next part, part number 3. Part number 3 is given 17 is add with a number that gives 0. It means
17 में ऐसा इंटीजर को ऐड करना है कि रिजल्ट क्या आए, 0 आए, या फिर मैं कहूँ लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल आए, राइट हैंड साइड। देन सी 17 as it is, let assume if we add x to the 17 then it is equal to 0, then we find the value of x। ठीक है, अगर 17 में मैं x को ऐड करता हूं देन जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। 17 प्लस x इज इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो सभी इंटीजर्स को मैं ब्रैकेट के उस साइड ले जाऊंगा। देन प्लस 17 को अगर ब्रैकेट के उस साइड ले जाता हूं देन प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और 17 एज इट। देन द वैल्यू ऑफ x इज -17। इट मींस अगर 17 में मैं -17 ऐड करता हूं देन रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड। देन द राइट आंसर इज -17। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is given +13 add with -12 add with a number that gives 13 plus add with -12 add with -7। It means 13 plus -12 में ऐसे इंटीजर को ऐड करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड। लेट वी assume a number is x, then we solve 13 as it is plus into minus, that is -12, add with x is equal to 13 as it is, then bracket को solve करेंगे -12 as it is plus into minus, that is -7 as it is, then solve 13 minus 12, that is +1, add with x is equal to 13 as it is, then -12 and -7, -12 and -7, that is -19. Let's see, that is 1 plus x is equal to 13 plus into minus, plus into minus, that is -19. Then 1 plus x is equal to 13 minus 19, that is -6, that is -6। Then we find the value of x, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन सभी नंबर्स को मैं क्या ले जाऊंगा, ब्रैकेट के उस साइड ले जाऊंगा। देन x is equal to -6 as it is, +1 ब्रैकेट से इस साइड आकर -1, देन x is equal to -6 -1, that is -7। It means if we add -7, if we add -7, then the left hand side is equal to right hand side, then the right answer is -7। Let's see again, क्वेश्चन दे रखा है कि 13 ऐड विद -12 में क्या ऐड किया जाए जो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड।
Then we assume a number that is x. It means अगर हम x को ऐड करते हैं देन जो लेफ्ट हैंड साइड हो किसकी इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड की। देन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे जो कि प्लस इंटू माइनस दैट इज -12 और 13 -12 that is 1. On a right hand side, then -12 as it is, plus into minus that is -7. Then 13 plus -12 and -7 that is -19. Then x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सभी इंटीजर्स को ब्रैकेट के उस साइड ले जाऊंगा. Then x equal to -6 and -7 that is -1 that is -7. It means अगर मैं -7 को ऐड करता हूं +13 प्लस -12 में देन जो लेफ्ट हैंड साइड हो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. Let's see the fifth part is given -4 add with +15 add with -13 is equal to -4 plus 15 dash dash dash. It means -4 plus 15 में क्या इंटीजर को ऐड किया जाए कि जो लेफ्ट हैंड साइड हो इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के. Then we assume a number is x. It means if I should add to the -4 plus 15, then the left hand side is equal to right hand side. Then we find the value of x. Let's see. -4 as it is, add with, solve this bracket, plus 15 as it is, plus into minus, that is -3, is equal to plus 15 and -4. Then 15 minus 4 that is plus 11. Add with a number that is x. Then -4 as it is, add with 15 minus 3 that is 12 is equal to 11 plus x. Then we solve 12 minus 4. 12 minus 4 that is 8 is equal to 11 plus x. देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो सभी इंटीजर्स को मैं ब्रैकेट के उस साइड ले जाऊंगा. इट मींस 11 को अगर मैं ब्रैकेट के उस साइड लेके जाता हूँ देन जो +11 है उस साइड जाकर -11 that is equal to x. Then 8 minus 11 that is -3 is equal to x. It means the value of x is -3. इसका मतलब अगर मैं -3 को ऐड करता हूँ -4 plus 15 में देन जो राइट हैंड साइड हो किसके इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड. देन द राइट आंसर इज -3. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3. तब तक के लिए थैंक यू. हैव ए नाइस डे.